Hello students, today we are going to discuss the most important topic of stereoisomerism, that is geometrical isomerism. We have already discussed about the optical isomerism and enantiomerism in the previous videos. Today we will learn about the general introduction to geometrical isomerism. Geometrical isomerism is the type of configurational isomerism. I have told you that isomerism is of two types, configurational and conformational. Conformational isomerism जनरली alkanes शो करते हैं और configurational isomerism वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं लगभग और जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, बट उनके जो एटम्स हैं अटैच्ड हैं या ग्रुप अटैच्ड हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है. इन अदर वर्ड्स द डिफरेंस इन देयर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स. Geometrical isomers are the stereoisomers which have different arrangement of groups or atoms around the rigid framework of double bonds. Stereoisomerism is of two types. First is geometrical isomerism and the another is optical isomerism. दोनों isomerism में स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है एटम्स का. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरली एल्कीन्स शो करती हैं या फिर वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड होता है. जिनके पास डबल बॉन्ड नहीं होता है वो वाले कंपाउंड ज्योमेट्रिकल या आइसोमेरिज्म या फिर जीआई शो नहीं करते हैं. और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है और डबल बॉन्ड से जो अटैच्ड ग्रुप हैं या एटम्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए. In other words, geometrical isomerism is a form of stereoisomerism, as we have discussed, describing the orientation of functional groups or the configuration of functional groups or atoms which are attached to the adjacent carbons to the double bond. Here are the some examples. The first example is of cis-2-butene and trans-2-butene. As you can see in the example, there is a carbon-carbon double bond and both the adjacent carbons to double bond containing two groups which are differ from each other. दो ग्रुप्स अटैच हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है. इन द सेकेंड एग्जाम्पल दिस इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन. यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन से दो डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड. यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड हैं. Geometrical isomerism is also known as cis-trans isomerism. Cis-trans is the type of nomenclature of geometrical isomers. इसे हम nomenclature में पढ़ेंगे कि कौन से कंपाउंड को हम cis बोलते हैं और कौन से कंपाउंड को हम trans बोलते हैं. The carbon atoms of carbon-carbon double bond are sp2 hybridized. जैसा कि हमने एल्कीन्स में पढ़ा है, एल्कीन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. इसीलिए जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं. मीन्स उनमें एक s और दो p ऑर्बिटल मिलकर तीन नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं विथ न्यू एनर्जी लेवल्स. The carbon-carbon double bond consists of one sigma and one pi bond. The presence of pi bond locks the molecule in one position. Pi bond की वजह से ही कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है उसमें restricted rotation होता है, जबकि जो कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो freely rotate हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो conformers बनाते हैं, conformational isomerism शो करते हैं. बट एल्केन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं, वेयर एज एल्कीन्स भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकती हैं.
Therefore, the rotation around the carbon-carbon double bond is not possible because of the restricted rotation. This restriction of rotation about the carbon-carbon double bond is responsible for geometrical isomerism. The cis isomer is one in which two similar groups are attached, and the trans isomer is one in which two similar groups are attached on the opposite sides. Next is the conditions to show geometrical isomerism. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए किसी कंपाउंड के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, इसके लिए दो मेन कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं. द फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूल मस्ट हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए. अगर डबल बॉन्ड नहीं होता है तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. अगर उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तब भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. नेक्स्ट कंडीशन इज टू एटम्स और ग्रुप अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट. जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है मीन्स जो कार्बन अटैच्ड हैं डबल बॉन्ड से, उन कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होने चाहिए. दिस इज द सेकेंड कंडीशन. अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड नहीं होते हैं देन वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. इन एग्जाम्पल, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है, हमारी फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, एंड इन द सेकेंड कि कार्बन के पास दो डिफरेंट एटम भी अटैच्ड हैं. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल कार्बन के पास जो एटम्स अटैच्ड हैं वो सिस फॉर्म में है, और इन द अनदर एग्जाम्पल जो एटम अटैच्ड हैं उनमें एक कार्बन एक 180 डिग्री पर रोटेट हुआ है, जिसकी वजह से उसके जो एटम्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं. उस फॉर्म को हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं. Here are the some other possible conditions. फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज ए. इसमें क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन के पास दो डिफरेंट एटम है. पहली वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है कि कार्बन के पास डबल बॉन्ड है. दूसरी वाली कंडीशन में क्या है कि उनके पास डिफरेंट एटम्स होने चाहिए. तो ए और बी दोनों डिफरेंट एटम है. इसका मतलब ये जो ए वाला कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. नेक्स्ट बी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और पहले वाले कार्बन के पास दो एटम्स हैं और दोनों ही सेम है. दूसरे वाले कार्बन के पास भी दो एटम हैं, बी एंड बी, और दोनों ही सेम है. ये हमारी दूसरी वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, इसीलिए ये वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. कमिंग टू द नेक्स्ट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक कार्बन पर दो सेम एटम्स प्रेजेंट है जबकि दूसरे कार्बन पर दो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है. अब इसमें हमारी दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है क्योंकि हमें दोनों कार्बन पर ही दो डिफरेंट एटम्स चाहिए. तो सी वाला कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. डी वाले कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. एक कार्बन के पास दो एटम्स हैं, दोनों डिफरेंट है. दूसरे कार्बन के पास भी दो एटम्स हैं, दैट डी एंड ई दोनों डिफरेंट है. तो ये वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन इसका नाम सिस और ट्रांस आइसोमर्स नहीं रखा जाएगा. इसका नोमेनक्लेचर अलग तरीके से होगा. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है, उनके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए और जो कार्बन जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से उनके पास दो डिफरेंट एटम्स होने चाहिए. वही वाले कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे.